ये कैसे होगा स्टार्ट? हम क्या करना? मतलब ऑनलाइन आना है मुझे। हम ये ऑन आ गया। एयर हो आप? फिर नेक्स्ट। एक बार लिंक कहाँ भेजा है, मैं भी खोल के देखता हूँ। हाँ नहीं गया। बायोकेमिक 11 से कनेक्ट किया हुआ है ना वाईफाई। कितनी बार है वैसा? क्या तुम बायोकेम कर लो। इसको पूरा बंद करूं क्या? क्विट। वहाँ के कुछ मैसेज आ रहे हैं, ये कोई बच्चे कुछ बोल तो नहीं। नहीं, जिनको बोलना चाहिए वही नहीं है। ये तो नर्सिंग वाले, ये तो की तो बात हो गई। क्या है तो मैसेज मैं नहीं डलेगा। एक बार बाहर जाके ये स्क्रीन आ रही है। So hello everyone. Has anybody joined?
Okay. Okay, so let's start. So today we will begin with, so the topic today is not the topic, but the concept today was we should discuss problem-based learning. Means I think you people are already familiar with these sort of questions in exams, which you must have answered, like clinical cases, which I used to say a clinical case. So similarly, we will talk here some other cases regarding other topics which have been covered after your exams. Like I think you all must be learning about electron transport system. So this whole problem-based learning is about practical aspects of electron transport chain. So first case, अभी ये क्यों नहीं आ रहा? So today first case we will discuss is like this: a 68-year-old female in a hypertensive crisis is being treated in the intensive care unit with intravenous nitroprusside for 48 hours. I think this is a overload for you people, but let's dissect this line and discuss separately. Here the points to ponder is a 68-year-old female. This is not important, but she is in hypertensive crisis. Hypertensive crisis means the blood pressure, normal blood pressure, you all must be knowing, it's around 120 systolic and diastolic should be 80 millimeters of mercury. So whenever someone blood pressure goes above 180 systolic and 120 diastolic, then they are called hypertensive urgencies, and if it goes systolic goes above 220, then it's called hypertensive emergency situation. So in that prompt intervention is required, prompt treatment should be given to the patient, otherwise the patient will land up in end organ dysfunction. So here the blood pressure is not mentioned, but it is mentioned that the patient is under hypertensive crisis, so she needed immediate intensive care. So the treatment of plan for hypertensive emergencies or urgencies is primarily intravenous nitroprusside. So here nitroprusside, so we can also talk about structure of nitroprusside. So this is the structure of nitroprusside. So I think you all must be understanding why I am talking about nitroprusside, because here it is five cyanide units are there, which are linked with iron, and one nitrate is there. So it is called sodium nitroprusside. When the salt is sodium, it's called sodium nitroprusside. It also comes in potassium nitroprusside form also. So here sodium nitroprusside. So nitroprusside, and that was treated for 48 hours, means 2 days. So nitroprusside is usually intravenous. It is given along with normal saline in very low volume. नहीं. फुल स्क्रीन कर लीजिए, पूरा आ जाएगा बीच में ना, ये पूरी स्क्रीन आ गई. अच्छा यहाँ से ये मिनिमाइज हो जाएगा. हाँ ऐसे. So the patient, so 48 hours the patient was treated. So it is a very it is a drug which should be used very cautiously. It is given in very low dose, at very slower rate. That's why probably the patient required 48 hours to calm down the blood pressure. Also, one point to keep in mind is
that whenever anyone is in hypertensive emergency or urgency, means the blood pressure shoots up, then the blood pressure should calm down, should be treated to come down very slowly, like not abruptly. You can give bolus of some antihypertensive drug and the blood pressure comes to normal. It is not like that. So the patient's blood pressure during 48 hours was brought back down to normal levels. However, she was complaining of a burning sensation in her throat and mouth, okay, followed by nausea and vomiting and diaphoresis. Diaphoresis means excessive sweating. So, and agitation and dyspnea. Patient is feeling after getting improved, her blood pressure is normal, but she is complaining of burning sensation, along with nausea and vomiting, and also sweating, excessive sweating, and she is agitated and dyspneic. She is unable to properly breathe. So the nurse noticed a sweet almond smell in her breath. Sweet almond is some seed which has a characteristic bitter smell. So when the nurse attended the patient, she like smelled some fragrance of sweet almond, and then she like talked to the doctor, and then her arterial blood gas analysis was sent to know the status of the pH of the blood, and the report came out to be metabolic acidosis, means कि, the pH of the blood is less than 7.35. So a serum test was suggested for metabolite of nitroprusside, which is thiocyanate, and it came to be a toxic level. So this is the last two lines we will discuss in coming slides. So now the question arises, what is the likely cause of her symptoms? What is the biochemical mechanism of this problem? And what is the treatment for this condition? So initial two questions are more important for us, but we will also discuss the third one. So this is the structure. Now you keep this in mind, and then we will talk later on. So what happens in sodium nitroprusside poisoning, and why we are saying poisoning? Because what happens ki whenever anyone's blood pressure shoots up, then usually when it is not calmed down, it persists, then some end organ dysfunctions usually happens, and this leads to various problems like this can compromise central nervous system or cardiovascular system also. So usually I am thinking कि इस पेशेंट को जो नाइट्रोप्रोसाइड दिया गया है, नॉर्मली जब देते हैं इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बिकॉज जिस रेट से देते हैं वो सेफ डोज होती है, सेफ रेट होती है. तो अगर ये टॉक्सिक होता तो ये ट्रीटमेंट में नहीं होता. लेकिन कुछ कंडीशंस में बिकॉज ये जो है क्लियर होती है, जैसे मेटाबोलाइट्स, मतलब जो लिवर है दैट गेट्स रिड of all those external substances by metabolizing it and excreting out to the body. But whenever इस तरह के जो patients होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें hepatic या renal dysfunction अगर कुछ लेवल का भी होता है, तो उसमें क्या होगा कि ये इनके मेटाबोलाइट जो है प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, और एज ए रिजल्ट वहां पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं. तो ये हो सकता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में गया, बट उसका एलएफटी और आरएफटी उस वक्त नहीं करा पाए और उसको नॉर्मल करना होगा, तो उसका कुछ डिरेंज होगा, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है मेटाबोलाइट का. और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो मेटाबोलाइट होता है वो है थायोसाइनेट, ठीक है, जिसका लेवल हम सीरम में टेस्ट करते हैं. तो फिर यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी कैसे हो जाती है, स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मेट हीमोग्लोबिन. ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन एक्चुअली हम पिछली स्लाइड में देखेंगे कि इसमें क्या है, 5 साइनाइड ग्रुप्स हैं और एक
नाइट्रेट ग्रुप है। तो ये जो नाइट्रेट ग्रुप है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस नाइट्रेट ग्रुप हीमोग्लोबिन गेट्स कन्वर्टेड टू मेट हीमोग्लोबिन, मींस कि इसमें जो आयरन है Fe2+ स्टेट में होता है वो Fe3+ स्टेट में हो जाता है। ठीक है, उस मींस कि ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन हो गया। उसमें क्या होता है फिर उसके बाद कि अब जो ये मेट हीमोग्लोबिन है इसमें, अच्छा और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि सर ने पढ़ाया होगा, जब ETC पढ़ाया होगा तो उसमें इनहिबिटर्स पढ़ाया होगा, तो उसमें बताया होगा कि साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर होता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 में कौन कौन से है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम E3, उससे बाइंड कर जाता है साइनाइड। तो यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम हो रही है वो उसी की वजह से हो रही है कि जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट सारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे बाय दिस साइनाइड, और उसके बाद एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ATP की डेफिशिएंसी होने लगेगी बॉडी में, और जहां जहां भी ATP की जरूरत है, जिन जिन फंक्शंस के लिए जरूरत है, वहां वहां पे वो अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेट हीमोग्लोबिन जो नाइट्रेट रिलीज हुआ उसकी वजह, उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें और साइटोक्रोम A और A3 में कंपटीशन सा हो जाता है बाइंड करने के लिए, बिकॉज मेट हीमोग्लोबिन में भी एफिनिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा साइनाइड से बाइंड करने की होती है। तो फिर और व्हेन मेट हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद साइनाइड इट फॉर्म्स साइनमेट हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद ये साइनमेट हीमोग्लोबिन जब बन जाता, नॉर्मली यही होता है, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी नहीं होती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि साइनाइड, और एक और चीज और क्या हो सकती है कि साइनाइड जो है वो थायोसल्फेट, जो एज ए रिजल्ट थायोसल्फेट कहाँ से आया, तो ये रोडानेज, और रोडानेज जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, ये थायोसल्फेट को यूज करके और साइनाइड के साथ बाइंड करके ये थायोसाइनेट बना देता है, जो कि टॉक्सिक नहीं होता है, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म होता है। या फिर अगर ये सारे साइनाइड यहाँ नहीं जा रहे हैं, नॉर्मली इस तरह से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड कर जाएंगे और उसको इनहिबिट करेंगे और साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है। तो ये तो मैंने डिस्कस किया इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम समरी इसकी ये है कि 69-year-old फीमेल विद न्यू ऑनसेट बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, यहाँ पे जो साइनाइड पॉइजनिंग में जो अगर केसेस देते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो समरी में है। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, nausea, vomiting, agitation and diaphoresis means excessive sweating, ये टिपिकल इसके सिम्टम्स होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के। और आफ्टर मेडिकेशन एरर वाज नोटेड बिकॉज इनको नाइट्रोपेसाइड चला है। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन ऑन द आर्टेरियल ब्लड गैस। तो इनमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रही है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए हो रही है बिकॉज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिटेड है, एज अ रिजल्ट ATP is not getting synthesized and it is not available for the cells to perform its functions. So एज अ रिजल्ट क्या होगा, मतलब एनारोबिक स्टेट हो गया। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टेट, ठीक है, तो लैक्टेट का एक्युमुलेशन हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू लैक्टेट एसिडोसिस। सो और यहाँ पे इसलिए टॉक्सिसिटी हो रही है बिकॉज थायोसाइनेट लेवल जो है वो टॉक्सिक रेंज में है, नॉर्मल रेंज में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या बनी हमारी, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टॉक्सिक डोज ऑफ नाइट्रोपेसाइड। एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, साइनाइड इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड दिस blocks the electron transport chain and this will inhibit the oxygen utilization leading to ATP depletion, and then as a consequence lactic acidosis will ensue, and that will lead to, and that will be because of anaerobic metabolism. So here treatment क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
So next slide. This is the schematic diagram of electron transport system and how ATP is synthesized here. So here you can see this is the complex 1, 3, 4, and this is the ATP synthase, and this is ATP-ADP translocase. So I think you all must be knowing what happens कि this cyanide binds to this complex 4, ठीक है, and this will lead to, फिर यहाँ पे क्या होगा, complex 4 जब inhibit हो जाएगा तो this will lead to inhibition of this ATP synthase, और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटॉन का इनफ्लक्स होना था बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और एज ए रिजल्ट एटीपी की सिंथेसिस होनी थी, वो सिंथेसिस नहीं हो पाए। ठीक है, हाँ तो फिर हाँ अब कुछ फ्यू क्वेश्चंस अलग से हैं जो हम और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस क्लिनिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें एक है कि a 16-month-old girl was found to have ingested approximately 30 ml of an acetonitrile based cosmetic nail remover. तो ये acetonitrile जो है ये क्या है, तो acetonitrile जो है ये ऑर्गेनिक साइनाइड का फॉर्म है, ठीक है, और ये फार्मास्यूटिकल रबर इंडस्ट्रीज में यूजुअली यूज होता है। नेल पेंट रिमूवर बहुत रेयरली के तौर पे यूज होता है। यूजुअल जो नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं वो एसीटोन होते हैं, कोई आइसोप्रोपाइल एसीटोन, आइसोप्रोपाइल एसीटोन, ऐसे ही और एक और कुछ नाम होते हैं जो नेल रिमूवर्स में यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 16 मंथ ओल्ड जो बेबी है उसने अराउंड 30 ml एसीटोनाइट्राइल जो है वो नेल रिमूवर वहां पे था और उसको इंजेस्ट कर लिया, एंड शी वॉमिटेड 15 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद उसे वॉमिटिंग हो जाती है, एंड द पॉइजन कंट्रोल सेंटर वाज कॉन्टैक्टेड, द फैमिली मेंबर्स कॉन्टैक्टेड द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, बट ट्रीटमेंट वाज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज यूजुअली यही होता है, उन्होंने बताया होगा नेल रिमूवर पी लिया है तो नेल रिमूवर में यूजुअली एसीटोन होता है जो कि वोलेटाइल है, तो उससे चांसेस कम है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए बिकॉज इट वाज कंफ्यूज्ड विद एन एसीटोन बेस्ड नेल पॉलिश रिमूवर, द चाइल्ड वाज पुट टू बेड एट हर नॉर्मल टाइम। फिर फैमिली वालों ने बच्चे को सुला दिया, एंड व्हिच वाज 2 hours पोस्ट इंजेक्शन के 2 घंटे बाद, and respiratory distress developed sometime after the child was put to bed and she was found dead the next morning. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पे कि एसीटोनाइट्राइल इज अ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ साइनाइड। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CN, मिथाइल साइनाइड। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि साइनाइड मेटाबोलाइज होकर के साइनाइड जो है वो एक्टिव कंपोनेंट बनेगा, एंड दैट विल बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इनहिबिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वाज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस चाइल्ड्स डेथ। तो क्वेश्चन क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर द लेटेंसी ऑफ एसीटोनाइट्राइल टॉक्सिसिटी एंड व्हाई प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वुड हैव प्रिवेंटेड दिस चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड डेथ। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास, acetonitrile crosses the mitochondrial membrane slowly, ऐसा नहीं है। Then acetonitrile induces hemolysis by inhibiting glucose 6-phosphate dehydrogenase, ऐसा भी नहीं है because ये जो है cytochrome A3 से bind करेगा। Acetonitrile is only poorly absorbed by the intestinal system, this is not true. Complex 4 of the electron transport system binds acetonitrile weakly bind करता है, ऐसा भी नहीं है बिकॉज साइनाइड में जो है बहुत एविड एफिनिटी होती है इससे कॉम्प्लेक्स 4 से बाइंड करने की, एंड साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स ऑक्सीडाइज एसीटोनाइट्राइल एंड स्लोली रिलीज साइनाइड। इसका आंसर है ऑप्शन ई, साइटोक्रोम P450, जहां पे ये मेटाबोलाइज होता है लिवर में जाकर के, वहां दैट ऑक्सीडाइज एसीटोनाइट्राइल एंड स्लोली रिलीज साइनाइड, मतलब ये फौरन नहीं रिलीज होता है, धीरे धीरे मेटाबोलाइज जो है इसका बॉडी में रिलीज होता है और उसके बाद उसके सारे एक्शन होते हैं, इसलिए
2 hours पोस्ट इंजेक्शन जो है द चाइल्ड डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और मॉर्निंग में जो है उसकी डेथ हो जाती है। एंड देन दूसरा क्वेश्चन एक और है कि इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय साइनाइड आयन लीड्स टू इंक्रीजेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्या होगा इसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस टू प्रोवाइड मोर ग्लूकोज फॉर मेटाबॉलिज्म, ये होगा। तो ग्लूकोनियोज अभी अगर नहीं पढ़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस तो आगे पढ़ाएंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस आल्सो रिक्वायर्स एटीपी, लेकिन यहाँ पे तो एटीपी की स्कार्सिटी हो रही है, बन ही नहीं रहा है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एडीपी इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपोर्ट जो है ये जो है ये एंटीपोर्ट होता है। एटीपी यहाँ पे बना और फिर यहाँ से ये एटीपी बाहर जाएगा तो फिर एडीपी को अंदर आना है, यानी साथ के साथ एडीपी का जो है वो इन एंड आउट फ्लक्स होता है साथ साथ। तो अगर एटीपी ही अंदर में नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर एडीपी कैसे आ पाएगा। तो फिर यहाँ पे आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ एडीपी इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस कांट बी द आंसर। यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड सबस्ट्रेट्स टू ऑगमेंट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, तो ये भी नहीं हो पाएगा, फैटी एसिड्स भी नहीं यूटिलाइज हो पाएंगे। और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज फॉर एनर्जी जनरेशन, ये भी नहीं होगा बिकॉज दैट आल्सो रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो लैक्टिक एसिड इन द ब्लड कॉजिंग एसिडोसिस, तो ये तो अभी होगा ही, अभी हमने डिस्कस किया कि एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जिसमें पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू लैक्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, लैक्टिक एसिड इन द ब्लड कॉजिंग एसिडोसिस। Then another question is, which of the following procedures best describes the emergency intervention for cyanide poisoning? ठीक है, डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट में हम क्या करें, ठीक है। इसको यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे तो आप as you all must be seeing कि this is the hemoglobin in its native state, oxygenated state। यहाँ पे नाइट्रेट जब इससे बाइंड करता है तो this is converted to met hemoglobin, नाइट्राइट बाइंड करता है, और उसके बाद मेट हीमोग्लोबिन जो है this competes with this साइटोक्रोम साइनाइड कॉम्प्लेक्स से, ये बाइंड कॉम्प्लेक्स से कंपीट करके साइनाइड के लिए कंपटीशन होता है इसमें, और क्या होता है फाइनली कि साइटोक्रोम AA3 इज रिलीज्ड फ्रॉम साइनाइड और साइनाइड गेट्स अटैच्ड टू मेट हीमोग्लोबिन, एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि बाय द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम रोडानिज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स, वहां पे क्या होता है कि this Cyan-Met, now it is called Cyan-Met hemoglobin. So by incorporating this thiosulfate क्या होगा, thiocyanate बन जाएगा, and sulfite, one sulfite molecule will be released, and finally क्या होगा, met hemoglobin will be released, which will be later on by the action of met hemoglobin reductase will be converted to normal hemoglobin, ठीक है, reduced form of hemoglobin, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें ये समझ आया कि साइनाइड जो है पॉइजनिंग जब होती है तो हम वहां पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मेन जो कॉम्पिटिटर है वो क्या है, मेट हीमोग्लोबिन, तो हम कुछ ऐसी चीज यूज करें दैट फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन, बिकॉज दिस विल compete with this cytochrome AA3 फॉर साइनाइड के लिए कंपटीशन होगा, तो क्या हो जाएगा एज अ रिजल्ट इसमें जो है बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ये सारे साइनाइड को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास तो
उसके बाद थायोसल्फेट, नेक्स्ट जो है वो क्या है, थायोसल्फेट। तो दो प्रोटेक्टिव चीजें हैं। उसके लिए हम इसलिए ट्रीटमेंट मोडालिटी में क्या करते हैं कि यूज करते हैं सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, नाइट्रेट विल promote the conversion of मेथहीमोग्लोबिन, प्रोडक्शन ऑफ मेथहीमोग्लोबिन, और थायोसल्फेट जो है ये this will provide raw material for this rhodonase enzyme to convert this cyanamate hemoglobin to thiocyanate and methemoglobin। ठीक है, अच्छा, और ये हो गई फर्स्ट मेन जो चीज इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक और मोडालिटी ये होती है कि हम हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोडानीज एंजाइम है और एक और विटामिन B12 भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 जो है जैसे मेट हीमोग्लोबिन है, वैसे ही विटामिन B12 की भी एफिनिटी जो है वो साइनाइड से बाइंड करने की ज्यादा होती है। सो दिस हाइड्रोक्सोकोबालामिन, दिस इज हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म ऑफ कोबालामिन विटामिन B12। ठीक है, तो दिस विल कॉज क्या हो जाएगा, ये जा करके साइन हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है। ठीक है, एंड दैट इज नॉट टॉक्सिक बॉडी के लिए। तो इसलिए हाइड्रोक्सीकोबालामिन भी ट्रीटमेंट मोडालिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीडोटल में हम ये यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामिन यूज कर सकते हैं। अमाइल नाइट्राइड अभी बताया कि नाइट्राइड क्या करेगा, दैट विल एनहांस द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू मेथहीमोग्लोबिन। ठीक है, which will be having more affinity for cytochrome cyanide complex से। तो इसलिए अमाइल नाइट्राइड, अमाइल फॉर्म ऑफ नाइट्राइड जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, और दूसरा या फिर सोडियम नाइट्राइड भी यूज, और दूसरा क्या है सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट क्या करेगा, दिस विल एनहांस थायोसाइनेट का फॉर्मेशन बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये तीन एंटीडोट्स होते हैं। उसके अलावा जो है डिकंटामिनेशन, अगर इंजेक्शन से हुआ है, जैसे यहाँ पे तो इन्हें क्या चला है, आईवी चला है, तो ब्लड में सारे नाइट्रोपेप्टाइड गए हैं और फिर लिवर में, और फिर लिवर से जाके वो ब्लड में ही सारे मेटाबोलाइट्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिकंटामिनेशन नहीं करते, लेकिन जो हमने उसमें पढ़ा बच्चे में, तो बच्चे में कर सकते थे बिकॉज उसने इंजेस्ट किया था। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिकंटामिनेशन में एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं, जिससे वो क्या करता है कि वो इसको केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी जो होती है, सपोर्टिव थेरेपी क्या है ये डिस्कस करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो हम देंगे ही, बिकॉज ऑक्सीजन की तो यहाँ पे लाइक लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट का ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैप है, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हम देते हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि सपोर्टिव थेरेपी में हम यहाँ लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, तो इसलिए हम बाइकार्बोनेट्स या सिट्रेट्स देते हैं, ताकि बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स 4 पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है, इसका इनहिबिटर साइनाइड है, एंड वी आल्सो नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी इसका इनहिबिटर है कॉम्प्लेक्स 4 का। कॉम्प्लेक्स 1 के लिए है पियरिसिडीन, अमाइटल एंड रोटिनॉन। इसमें से पियरिसिडीन और रोटिनॉन जो है ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पिस्टिसाइड की तरह भी यूज होते हैं, लाइक फिशरीज वगैरह में यूज करते हैं कि कुछ ऐसी जो फिशेस होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं बाकी फिशेस के लिए, तो उनके लिए उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये रोटिनॉन उसमें यूज। पेरिसिडीन है, तो इनसे कभी कंटामिनेशन हो जाता है, तो उसमें भी सेम थिंग यही वाला हो जाएगा कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है कंप्लीट ईटीसी का, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा,
और फिर एटीपी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अमाइटिल जो है, इसको आप लोग अभी नाम ही याद करो, ये बार्बिट्यूरेट क्लास का आता है, हिप्नोटिक सेडेटिव की तरह यूज किया जाता है इसको। और फिर कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, इसका इनहिबिटर एंटीमायसिन ए है, ये आई थिंक एंटीबायोटिक है ये। और एटीपी सिंथेज जो है उसका इनहिबिटर मुझे लगता है सबको याद होगा कि ओलिगोमाइसिन है, और ये कौन से पार्ट को इनहिबिट करता है, ये एफओ को इनहिबिट करता है। और दूसरा एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज जो है उसको इनहिबिट करने वाला टिलोसाइड है, ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, अब इनका डिस्क्रिप्शन दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, inhibition of which of the following enzymes was the most likely cause of this child's death? The culprit here is cyanide produced from acetonitrile. Cyanide inhibits the electron transport chain of cytochrome oxidase. So, and then next one was, which of the following best describes the reason for the latency of acetonitrile toxicity, and why prompt treatment would have prevented this child's respiratory distress and death? ठीक है, ऑलमोस्ट अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है साइनाइड पॉइजनिंग में तो ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट करते हैं तो, अगर डिले हो जाता है तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना। So answer is acetonitrile itself is not the toxicant but undergoes metabolism and produces cyanide, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोग्लिसराइड इटसेल्फ को टॉक्सिक नहीं है, बट जब लिवर में जाता है और वो मेटाबोलाइट के फॉर्म में जब वो चेंज होता है तो वो थायोसाइनेट में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है, एसीटोनाइट्राइल जो है वो मेटाबोलाइज होकर के जब उसका साइनाइड बनता है, दैट बिकम्स टॉक्सिक। And next question, inhibition of oxidative phosphorylation by cyanide ion leads to increases in which of the following? इसमें gluconeogenesis requires ATP which is in short supply, ATP है नहीं, turning up the catabolism of glucose to lactate in the absence of an intact electron transport chain. ADP cannot be transported into mitochondria because ATP, its antibody partner, isn't made by oxidative phosphorylation. As a result, cyanide inhibition of cytochrome oxidase. So metabolism of fatty acids and ketone bodies requires a functional electron transport chain for the metabolism, and these possibilities are also ruled out. ठीक है, फिर question is question number 4. Which of the following procedures best describes the emergency intervention of for cyanide poisoning? ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम तो नहीं करना है, हमें तो बढ़ाना है, बिकॉज पेशेंट को तो ऑलरेडी डिस्निया हो रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट विद नाइट्राइट्स, और क्या करते हैं, नाइट्राइट्स से ट्रीटमेंट करेंगे टू कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन, ट्रीटमेंट विद थायोसल्फेट टू फॉर्म थायोसाइनेट, ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमरजेंसी इंटरवेंशन फॉर साइनाइड, यूज ऑफ म्यूकोमिस्ट एनेसिटाइलसिस्टीन टेकन। म्यूकोमिस्ट एनेसिटाइलसिस्टीन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ये पैरासिटामोल पॉइजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चीजें हैं, ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइट, ट्रीटमेंट विद नाइट्राइट्स टू कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन है, और दूसरा ट्रीटमेंट विद थायोसल्फेट टू फॉर्म थायोसाइनेट। तो हम इसमें कौन सी चीज जो है, इसमें एक ऑप्शन को चूज करना है, तो हम कौन सा करें। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि nitrites bind to hemoglobin converting it to met hemoglobin, which binds cyanide more tightly than cyanohemoglobin and pull cyanide from cyanohemoglobin to form cyano-met hemoglobin, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि हम नाइट्राइट्स देंगे, बिकॉज सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो तो नाइट्राइट्स कर रहा है ना। फिर है thiosulfate is used to displace cyanide from cyan-met hemoglobin to form thiocyanate which can be excreted, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये हो जाएगा और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो ये तो लास्ट प्रोसीजर है। इसलिए वैसे ऑप्शन जो है ये दोनों ही सही है, बट हम इमरजेंसी में सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्राइट्स देंगे, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनस्किल्ड वर्कर इन अ वाटर गार्डन और प्लांट नर्सरी वाज सेंट टू स्वीप अप अ स्पिल ऑफ अ white powder in the storage shed. ठीक है. Later, he was found with labored breathing and convulsions. On further examination, the white powder was identified as. मैंने अभी बताया कि रोटिनॉन इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है. तो क्या होता है, तो ये कहाँ पे यूज होंगे? वाटर गार्डन है. वाटर गार्डन मीन्स कि वहाँ पे फिशरीज का काम होता है. अगर प्लांट नर्सरी है तो मैंने बताया कि हर्बिसाइड की तरह भी यूज करते हैं. तो वहां पे अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ से हम यही चीजें कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे कुछ हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड. ठीक है. उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर लिखा हुआ है, मीन्स कि ही इज नॉट अवेयर कि ये जो पाउडर है ये क्या है. लेटर ही वाज फाउंड विद लेबर्ड ब्रीथिंग एंड कंवल्जन्स. On further examination, white powder was identified as rotenone. अब क्वेश्चन क्या है? Respiratory distress is induced on rotenone exposure because it inhibits the complex that catalyzes which of the following. तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, किसको इनहिबिट करता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम A1 A3 टू ऑक्सीजन. ठीक है. नेक्स्ट इज द मेजर मेटाबॉलिक कंसीक्वेंस ऑफ परटर्बेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ NADPH. NADPH का यहाँ पे कोई काम नहीं. इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH होगा. ऑक्सीडेशन हो पाएगा NADH का? नहीं हो पाएगा. इंक्रीज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इसको हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. डिक्रीज रीजनरेशन ऑफ NAD होगा? डिक्रीज रिडक्शन ऑफ FAD. इसमें आंसर होगा डी, डिक्रीज रीजनरेशन ऑफ NAD. Because inhibition of electron transport chain shuts down the major pathway of regenerating NAD from the NADH produced intermediary metabolism. This forces the cytosolic conversion of pyruvate to lactate to regenerate NAD so that glycolysis can continue in the absence of a functioning ETC. Okay, so the pearls collected from this discussion are the electron transport chain or electron transport system is located, as we all know, on the inner membrane of the mitochondria and is responsible for the harnessing of free energy. Okay. The chain consists of a series of carriers like complex 1, ubiquinone, complex 2, complex 3, cytochrome C reductase है, उसके बाद cytochrome C and cytochrome oxidase. So all the chain consists of a series of these carriers arranged along the inner membrane of mitochondria that transport electrons from NADH and reduced flavin carriers to molecular oxygen. And energy is released as electrons travel from more reduced, that is more negative reduction potential to more oxidized. Like reduction potential E0 अगर है तो जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है उसका नेगेटिव में होता है और ऑक्सीजन का पॉजिटिव में होता है. So the electron will have tendency to go from negative to positive electromotive force. ठीक है, to more oxidized carriers to drive the phosphorylation of ADP to ATP. ठीक है. This leads to the क्या होता है, ये जो चार्ज का मूवमेंट होता है, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट along these complexes होता है. This leads to transfer of proton from the mitochondrial matrix to the intermembrane space. Yeah, or that leads to the development of proton gradient, and that is responsible for the generation of ATP from ADP. So the components of the electron transport chain have various cofactors which form vital complexes. The disruption of various complexes may interfere with the ETC, leading to inability to manufacture ATP. The energy gained from electron transfer is used to drive protons out of the inner mitochondrial matrix to the cytosol, establishing a gradient of protons. As the protons come back into the matrix via the ATP synthase complex, ADP is phosphorylated to ATP. Okay? The normal mitochondria produce ATP as they transport electrons to oxygen. Any interference with ATP synthesis or translocation across the mitochondrial membrane will inhibit electron transfer. ठीक है.
और फिर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। So rotenone binds avidly to the flavoprotein NADH-CoQ reductase और NADH dehydrogenase, इसका जो दो नाम है, ठीक है। उसके बाद एक और केस हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिगार्डिंग, ये है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि a 37-year-old male or female presents to your clinic to discuss her plans for a new vegetarian diet. Nowadays ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं। The patient heard from a friend about a new vegetarian diet that promised rapid weight loss. The diet consists of many leafy vegetables with no pork, chicken, beef, eggs or milk. She is also planning on working out regularly with the goal of running a marathon within the year. ये होता है यूजुअली कि वेट लूज करना है तो हमें वीगन खाना है और हमें एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए ये आपके पास कोई पेशेंट आती है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? After listening to the patient, you refer her to a nutritionist for further assistance and guidance. कि आप ऐसे ही नहीं कह दोगे कि हाँ गो वीगन आप खाओ सिर्फ और वेजिटेबल्स खाओ और एक्सरसाइज करो एंड नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं है? ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, व्हाट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड हाउ मेनी आर देयर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एंड लिस्ट द एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो मुझे लगता है ये सब पता है सबको। सो यहाँ पे समराइज करेंगे कि द 37-year-old female who is planning to undertake a radical new vegetarian diet is in your office for counseling, ठीक है। ये काउंसलिंग के लिए आए। तो अब आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए किसी को काउंसिल करना है तो, कि whether they should go vegetarian or not, ठीक है। और अगर कोई वेजिटेरियन जा रहा है तो उसको अलग से क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होगी अदर देन वीगन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि the vegetarian should be careful to ensure a balanced ingestion of proteins, fats, carbohydrates and vitamins, ठीक है। ये तो सबके लिए है, we should have ample amount of fats, carbohydrates and proteins and vitamins हमारे डाइट में होना चाहिए। Most animal proteins contain all the essential amino, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल एनिमल प्रोटीन्स दे कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जबकि वेजिटेबल प्रोटीन्स जो होती है ऑफन लैक वन और मोर ऑफ देम, ठीक है। इसलिए लाइक जैसे कि एग्जांपल में मैं बता दूं कि सीरियल्स लैक लाइसिन एंड थ्रेओनिन, और हमें पता है कौन कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ स्लाइड में सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें लाइसिन और थ्रेओनिन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, सीरियल्स लैक, तो जो सीरियल्स पे सिर्फ ओनली रहेगा वो लाइसिन और थ्रेओनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड पल्सेस में क्या होता है, पल्सेस आर आल्सो डेफिशिएंट इन मिथ्योनिन में डेफिशिएंट होते हैं और ट्रिप्टोफैन में भी डेफिशिएंट, एंड दीज टू आर, although cysteine is also deficient in pulses but methionine, tryptophan is deficient in pulses, ठीक है। So cereals and pulses will not suffice, ठीक है। दोनों अगर मिला देते हैं तो हो जाता है, बिकॉज पल्सेस में लाइसिन थ्रेओनिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो हम सीरियल्स और पल्सेस मिला के खाने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद मेज या कॉर्न अगर कोई ऑप्ट करता है तो दैट विल लीड टू ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी। मेज और कॉर्न में जो है वो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, which is an essential amino acid। उसके बाद इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों को कि सीरियल्स पल्सेस सारे कंबाइन करके खाने के लिए हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चंस और क्या बन रहे हैं, इतना नॉलेज आपके पास है कि सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन सम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, और दूसरा एक वेजिटेरियन होने का के पीछे जो है वो डिसएडवांटेज ये होता है कि अदर देन डेफिशिएंट इन सम एसेंशियल अमाइनो एसिड, vegetarian diets are also having some
इनहिबिटर्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं सम, लाइक ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं। अब जो प्रोटीन्स होती हैं उनको इनहिबिट करने के लिए हमारी बॉडी में जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारी जो एंजाइम्स होती हैं, ये लाइक हर अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे तो एक्ट नहीं करती, इनका स्पेसिफिक साइट होता है। तो इसलिए पेप्सिन जहाँ पे एक्ट करती है, ट्रिप्सिन का अलग होता है, काइमोट्रिप्सिन का अलग होता है। इसलिए कुछ वेजिटेबल प्रोटीन जो होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ लेक्टिन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, दैट इनहिबिट दीज एंजाइम। तो अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो अवेलेबिलिटी नहीं होगी अमाइनो एसिड्स की, तो प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं सिंथेसाइज हो पाएंगे। ठीक है, और these anti-nutritional factors like trypsin inhibitors, lectins and tannins, these are present in soybean, peas, fava beans. इनमें सोयाबीन में होता है, पीज में होता है और कुछ फेवा बीन्स में होते हैं ये इनहिबिटर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑल अमाइनो एसिड्स आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन सेल्स एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। So which of the following amino acids, all of which can be synthesized by the human body, must be taken in the diet because it is not synthesized to meet the body's needs? तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें क्या होगा आंसर में, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर याद है नाम तो क्यों नहीं है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यंग चाइल्ड इज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेमी एसेंशियल की बात करते थे, जैसे हमने डिस्कस किया था तो उस वक्त पढ़ा था कि इसेंशियल और सेमी इसेंशियल में, कि हमने याद किया था कि आर्जिनिन जो है और आर्जिनिन और हिस्टिडीन को मान लेते थे कि सेमी इसेंशियल। ठीक है, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, दीज आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन अ चाइल्ड इज इन ग्रोथ फेज में होता है, तब जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यंग चाइल्ड, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड को ही जरूरत होती है, इवन एडल्ट्स में व्हेन दे अंडरगो सम ट्रॉमा, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या पोस्ट सर्जरी फेज जो होता है जिसमें बॉडी को क्या होना है, वो टिश्यूज को रिमॉडल होना है वहां पे, और ट्रॉमा से ओवरकम करना है, तो वहां पे भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो वहां पे क्या करेंगे, ये इन अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पे हिस्टीडीन आर्जिनिन की भी जरूरत। तो यहाँ तो एक केस है जिसमें यंग चाइल्ड है, तो यंग चाइल्ड में तो हम आराम से कह देंगे कि यंग चाइल्ड में arginine will act as an essential amino acid. So a young child is in an automobile accident that requires surgical intervention and substantial recovery time in the hospital. A consultation with a nutritionist results in a specific dietary plan. The plan included the supplementation of an amino acid that is typically considered a non-essential amino acid. ठीक है, which of the following amino acids is an essential amino acid under conditions of enhanced growth or surgical recovery? तो मैंने बताया कौन सी, आर्जिनिन, जिसको सेमी एसेंशियल कहते हैं बट यहाँ पे एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा, एज पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड नियोनेटल स्क्रीन। अच्छा ये अलग, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा वो आंसर, इनके आंसर जो है वही हो गए, मिथ्योनिन कैन बी सिंथेसाइज्ड। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी तो सिंपल आंसर था, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल के बेसिस पे हमने आंसर कर दिया। बट आगे जब आप पढ़ोगे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, तो फिर वहां पे ये सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। तो मुझे लगता है अभी के लिए ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो ये भी पॉइंट्स हैं कि मिथ्योनिन कैन बी सिंथेसाइज्ड by the methylation of homocysteine by the enzyme methionine synthase, which requires the participation of vitamin B12 and 5-methyl tetrahydrofolate. It is actually the homocysteine component of methionine that is required, since this reaction has the capacity to synthesize enough methionine. However, there is no good dietary source of homocysteine, इसलिए methionine जो है वो important essential amino acid हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, arginine is considered non-essential because biosynthetic pathways जो हैं for its generation do exist. The arginine can be synthesized from glutamate. ये liver cells में synthesize होते हैं हमारे, लेकिन सारे cells में नहीं होते। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जो हाउस कीपिंग प्रोटीन्स होती है उनकी सिंथेसिस के लिए आर्जिनिन की जरूरत होती है, तो सेल्स क्या करेंगे, तो लिवर में ग्लूटामेट से आर्जिनिन बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, तब ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन में आर्जिनिन जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है।
ठीक है, उसके बाद वही क्वेश्चन है। अच्छा, फिनाइलएलानिन वाला क्वेश्चन रहने देते हैं, बिकॉज अभी आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि ये फिनाइलएलानिन जो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अमीनो एसिड्स का, इसमें हमने ये बताया एनिमल और प्लांट प्रोटीन्स के कि ये क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ठीक है, उसमें ये फैक्टर्स तो हो ही गए, डिफिशिएंट इन अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, सम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी होती है। ठीक है, इसमें ये होता है वही डाइजेस्टिबिलिटी वाली चीज होती है कि एनिमल प्रोटीन जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होते हैं एंड एज ए रिजल्ट वो एब्जॉर्ब होते हैं और वो ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं। इसलिए जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होता है ऑफ अमीनो एसिड वो एनिमल प्रोटीन्स का ऑलमोस्ट लाइक 90 to 100% होता है, बट प्लांट प्रोटीन में ये कम होता है, किसी में 50% है, किसी में 60%, किसी में 80% होता है। ठीक है, इसलिए जो भी वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं उन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारी चीजें कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से देखें? नो क्वेश्चन, तो फिर अपन कैसे होंगे? अमाइल नाइट्रेट, देखो, so there is one question to explain amyl nitrite. So let's go to the slide. अमाइल नाइट्राइट, दिस यहाँ पे हम इससे एक्सप्लेन करते हैं अमाइल नाइट्राइट। तो ये नाइट्राइट जो है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है कि दिस अटैचेस विद द आयरन Fe2+ ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो है Fe3+ में चेंज होने की टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड मेट हीमोग्लोबिन बेसिकली, कि ऑक्सीडाइज स्टेट जो होता है आयरन का उसी को मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हमें यही बनाना है। तो NO2- के अमाइल नाइट्राइट जो है ये इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्राइट का, तो ये डिकम्पोज होके अमाइल अलग और नाइट्राइट अलग बनेगा, और व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद हीमोग्लोबिन तो दैट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया कि मेट हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी साइनाइड से बाइंड करने की ज्यादा होती है, इसलिए इसका कंपटीशन होगा किससे? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो यही है कि हम इसका कॉम्पिटिटर हमें बनाना है, जो कि क्योंकि साइनाइड जो है ये जाके ऑक्सीडेज से, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड ना करे, इसलिए हम एक कॉम्पिटिटर जनरेट करेंगे ताकि उससे बाइंडिंग ना हो, इसलिए हम जो है अमाइल नाइट्राइट को यूज कर रहे हैं कि मेट हीमोग्लोबिन। अब वो क्या करेगा, साइनाइड से बाइंड करके साइन मेट हीमोग्लोबिन बन जाएगा, एंड दैट इज नॉट टॉक्सिक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो फ्री हो जाए। ठीक है, दैट इज नो मोर बाउंड टू द साइनाइड, अब वो फंक्शन करेगा प्रॉपर। अब जो हमारे पास साइन मेट हीमोग्लोबिन है that will be taken care of by the rhodanase enzyme present in the liver cells में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ये थायोसल्फेट को यूज करके, इसलिए हम ट्रीटमेंट में भी थायोसल्फेट देते हैं, बिकॉज बॉडी में जितना है वो तो नॉर्मल है, बट एक्सेस में जब हो रहा है तो हमें ऊपर से देना पड़ेगा, इसलिए ट्रीटमेंट में हम थायोसल्फेट देते हैं। अब ये क्या करेगा, थायोसल्फेट जो है साइनमेट हीमोग्लोबिन से भी साइनाइड को निकाल देगा और एक अलग कंपाउंड थायोसाइनाइड बन जाएगा, थायोसाइनेट
जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है, और फिर हमारी मेथियोग्लोबिन फिर से रिलीज हो जाएगी ब्लड में, और फिर ये मेथियोग्लोबिन जो कि आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, हीमोग्लोबिन रिडक्टेज होती है, साइटोक्रोम B3 कहते हैं शायद इसको, दैट विल टेक केयर ऑफ दिस मेथियोग्लोबिन, और ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा। Things containing nutritional inhibitors. अच्छा, न्यूट्रिशनल इनहिबिटर्स, ये लाइक इतना इम्पोर्टेंट, इसको कैसे पता चला? वो निकलेंगे कैसे? न्यूट्रिशनल इनहिबिटर्स में मैंने ऐसे ही लाइक यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया था, तो बिकॉज क्या होता है नाउ डेज, बहुत कॉमन चीज है कि हर इंसान जो है परेशान है कि उसका मतलब वेट वो करना, हर इंसान अपने आप में एक्सपर्ट हो जाता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, और हम जैसे डॉक्टर से कम इतना, जैसे कि यहाँ पे भी है कि अब तो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो बताएंगे, बट बीइंग डॉक्टर हमें कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो उसमें ऑल्दो ये चीजें जो है न्यूट्रिशनिस्ट को ज्यादा पता होती होगी, वो ज्यादा पहचानते होंगे, इतनी डिटेल्स नहीं है आप लोगों के लेवल का, लेकिन बस ये जानने के लिए मैंने कुछ पॉइंट बता दिए हैं कि क्यों वेजिटेबल और एनिमल प्रोटीन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके फायदे या नुकसान हैं। इसलिए मैंने ये कह दिया कि इसमें क्या क्या रीजंस होते हैं। एक तो ये हो गई कि बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, दूसरी डाइजेस्टिबिलिटी होती है, और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम्स होती है वो होती है जो प्लांट्स में होते हैं। अब इसमें कि किस प्लांट में क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता है। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे कि किसमें क्या है, लेकिन कम से कम हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ, हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर कोई चीज जब पता ही नहीं होगी कि इसमें क्या नुकसान होता है, तो फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर ये मालूम होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम उन्हें सजेस्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए। तो इसलिए ये जान जाओ कि कुछ ऐसे वेजिटेबल प्रोटीन्स में कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देंगे तो फिर डाइजेस्टिबिलिटी नहीं रहेगी ना वैसी जैसी एनिमल प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर कुछ लेक्टिन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को इनहिबिट, प्रोटीएजेस को इनहिबिट करते हैं, कुछ टैनिन्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं, ये पूरी फैमिली होती है कंपाउंड्स की जो इनहिबिट करते हैं इन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को, ठीक है। इसलिए बस ये ध्यान में रखने के लिए। पुराना वाला, नया वाला नहीं है शायद। ठीक है, ओके, थैंक यू।